آج نہ تو زمین پھٹی تھی اور نہ ہی آسمان گرا تھا۔ ظلم کی انتہا ہونے کو تھی، مگر کوئی اپنا یہاں اپنا نہیں تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ مجھے مت چھو، میرے قریب مت آؤ، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ تبھی میرے سر سے دوپٹے کو کھینچنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ میں زارو قطار رو رہی تھی اور اپنی رہائی کی دہائی دے رہی تھی۔ میں تڑپتے ہوئے خود کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر میری پکار یہاں پر کوئی بھی سننے والا نہیں تھا۔ میں بے بسی کی نگاہوں سے اپنے ارد گرد جمع لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ سب لوگ تماشائی تھے جو میری عزت لٹنے کا تماشا بڑی غیرت مندی سے دیکھ رہے تھے۔ میں سب کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ مجھے اس ظالم شخص سے کوئی تو بچا لے، خدارا کوئی تو میری مدد کرے۔ لیکن کوئی بھی مجھے اس ظالم شخص سے بچانے کے لیے اپنے قدم آگے نہیں بڑھا رہا تھا۔ اس بھرے بازار میں کھڑے ہر شخص کا غیرت سے دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ سب کے سب اپنا ضمیر بیچ کر یہاں ہوتی بے حیائی کا حصہ بننے کے لیے آئے تھے۔ میں دوڑتے ہوئے اپنے چچا کے قریب گئی۔ یہ وہی چچا تھا جس نے مجھے اس مشکل میں ڈالا تھا۔ میں نے اپنے چچا کے قدموں کو زور سے پکڑتے ہوئے کہا، خدا کے لیے چچا مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ چچا میں تمہاری بیٹیوں کی طرح ہوں، میرے اوپر رحم کرو۔ مرنے کے بعد میرے اماں ابا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ میں اپنے چچا کو ہر طریقے سے منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اپنے چچا کا سویا ہوا ضمیر جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اپنے چچا سے کہہ رہی تھی کہ آپ تو مجھے شہر کی سیر کروانے کے بہانے لے کر آئے تھے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں گے؟ میں کبھی آپ کے ساتھ نہیں آتی، میرے اوپر رحم کرو، مجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤ، یہاں چھوڑ کر مت جاؤ۔ کس کے سہارے یہاں پر مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ جب میری کوئی بھی پکار میرے چچا نے نہیں سنی تو مجھے بے انتہا غصہ آنے لگا۔ بے بسی کے عالم میں روتے ہوئے میں اپنے چچا کا گریبان پکڑ کر کھڑی ہو گئی اور جھنجھوڑتے ہوئے چچا سے کہنے لگی کہ تمہارا ضمیر مر چکا ہے، تم مجھے نہیں بلکہ اپنی بیٹی کو جوئے میں ہار کر جا رہے ہو۔ تم میرا نصیب نہیں اپنی بیٹی کا نصیب لکھ رہے ہو۔ آج جو کچھ میرے ساتھ کر رہے ہو، کل کو تمہاری بیٹیاں بھی سب یہی کچھ بھگتیں گی۔ میری آہ لگے گی تمہیں، میں قیامت تک تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ میری سسکیاں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ میں زارو قطار رو رہی تھی اور چچا کو جھنجھوڑے جا رہی تھی کہ تبھی چچا نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارتے ہوئے کہا کہ تمہارے ماں باپ نے میرے ساتھ کون سا اچھا سلوک کیا تھا؟ ساری جائیداد غیروں میں لٹا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور تمہارا بوجھ میرے سر پر ڈال گئے۔ شکر کرو میں نے تو تمہیں صرف بیچا ہے، اگر تمہاری جگہ تمہاری اور کوئی بہن ہوتی تو میں اس کو بھی تمہاری طرح بیچ دیتا، کیونکہ تمہارے باپ نے میرے ساتھ ہمیشہ سوتیلوں والا سلوک کیا تھا۔ آج مجھے اگر اپنا بدلہ لینے کا موقع مل رہا ہے تو کیوں کر میں اپنے قدم پیچھے ہٹاؤں؟ کس لیے تمہیں یہاں سے لے کر جاؤں؟ تم میرے لیے صرف ایک بوجھ تھی جو آج میرے سر سے اتر گیا۔ تمہیں پال پوس کر اس لیے نہیں بڑا کر رہا تھا کہ ساری زندگی تمہارا بوجھ اٹھائے پھروں۔ میں تو تمہیں اس لیے پال رہا تھا کہ وقت آنے پر تمہارا بھاری معاوضہ وصول کر کے اپنے ساتھ ہوئے سارے ظلموں کا بدلہ لے سکوں، اور آج وہ دن آ گیا ہے اور تم مجھے میرے ہی مقصد سے پیچھے ہٹنے کا کہہ رہی ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ چچا نے مجھے زوردار دھکا دیتے ہوئے اپنا ہاتھ جھٹکا۔ میں دور جا کر اسی آدمی کے قدموں میں گر گئی جو میری عزت کو تار تار کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اس نے میرا دوپٹہ کھینچتے ہوئے کہا کہ تم نے دہائی دے کر بھی دیکھ لیا، رو کر بھی دیکھ لیا، یہاں پر میرے ہوتے ہوئے تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ کسی کی اتنی جرت نہیں کہ کوئی تمہیں میرے شکنجے سے لے اڑے۔ میں نے اپنا دوپٹہ اس آدمی کے ہاتھ سے کھینچتے ہوئے کہا کہ خدا کے قہر سے ڈرو، جہاں خدا ہوتا ہے وہاں تم جیسے لوگ بھی دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں۔ میری مدد میرا خدا کرے گا، مجھے تم جیسے ان مٹی کے پتلوں سے کسی قسم کی کوئی امید نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنا ضمیر مار چکے ہیں، یہ لوگ نہیں جانور ہیں، انہیں تو اپنی ماں بیٹی کی عزت بھی پیاری نہیں۔ ان کے سامنے تو ان کی ماں بیٹیاں بھی ہوں تو یہ ایسے ہی ہاتھوں میں چوڑیاں پہنے بیٹھے رہیں گے۔ ان میں سے کوئی اتنی جرت نہیں رکھتا جو 4 قدم آگے بڑھ کر تمہارے کیے گئے ظلم کا تمہیں جواب دے سکے۔ لیکن میں اپنے اس رب سے التجا کرتی ہوں، میرا رب تمہیں تمہارے ظلم کا جواب ضرور دے گا۔ میری بات سن کر پورا مجمع قہقہ لگا کر ہنسنے لگا، اور یہ ظالم صفت شخص جو مجھے جوئے میں جیت چکا تھا تالی بجا کر میری باتوں کا مذاق اڑا رہا تھا۔ میں زارو قطار رو رہی تھی۔
मेरी बेबसी का तमाशा पूरा बाजार देख रहा था। दुख मुझे इस बात का नहीं था कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था। दुख तो इस बात का था कि यहाँ पर खड़ा हर इंसान किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बेटा था, लेकिन वो एक बहन बेटी की इज्जत को बचाने की हिम्मत नहीं रखता था। मुझे ये बात अंदर से खाई जा रही थी कि हवा की बेटी की मदद करने को इन नाम के मर्दों से भी कोई तैयार नहीं था। ये सोचते हुए मेरी रूह तक कांप रही थी कि मेरी जगह कल को इनकी बेटियां भी यहाँ इस हालत में हो सकती हैं, लेकिन ये लोग तब भी हाथों में चूड़ियाँ पहनेंगे। मेरी आंखों से बेबसी के आंसू निकलने लगे थे। मैं ज़ारों कतार रोते हुए आसमान की तरफ देखने लगी। मैं अपने परवरदिगार से इल्तिजा कर रही थी, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी मदद फरमा। ऐ अल्लाह, तेरी दुनिया के बंदे बहुत जालिम हैं, मुझे इनके जुल्म का शिकार होने से बचा ले मेरे मौला। मैं आसमान की तरफ देखते हुए अपने हाथ परवरदिगार की बारगाह में फैलाए हुए थे कि तभी उस जालिम शख्स ने मेरे बाल खींचते हुए मुझे अपने करीब खड़ा किया और मुझसे कहने लगा, बस बहुत हो गया है तुम्हारा तमाशा। तुम्हारी मदद तो तुम्हारा खुदा भी नहीं करना चाहता, इसीलिए तो कब से तुम अपने खुदा को पुकार रही हो, लेकिन अभी तक तुम्हारी मदद के लिए कोई मसीहा नहीं आया। तो फिर तुमने कैसे सोच लिया कि तुम बच जाओगी? इतना कहते उस जालिम शख्स ने मेरे सर से मेरी इज्जत को खींच लिया था। मेरे सर से मेरा दुपट्टा उतार दिया गया। मेरा जिस्म मिट्टी हो चुका था। मैं किसी मोज़े के होने का इंतज़ार कर रही थी। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं दिल में अपने रब को मुसलसल पुकार रही थी। मैं औरत ज़ात थी, उन घटिया मर्दों का मुकाबला नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने आंखें बंद करते हुए अपने परवरदिगार को दिल की गहराइयों से पुकारना शुरू किया। जैसे ही उस जालिम शख्स ने भरे बाजार में मेरा दुपट्टा खींचा और मेरी इज्जत पामाल करना चाही, तो अचानक से एक ऐसा तूफान बरपा हुआ जो सबको साथ उड़ा कर ले गया। मेरा नाम सूफिया है। मैं एक खाते पीते तबके से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे अब्बा चावलों का कारोबार करते थे। घर का गुजर बसर बहुत अच्छे से होता था। मेरी अम्मा एक घरेलू खातून थे। अम्मा घर को संभालने के साथ अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी बेइंतहा ख्याल रखती। अब्बा ने अपने कारोबार अपने करीबी दोस्त के साथ शुरू किया था। मेरे दादा ने 2 शादियां कर रखी थी। दादा की पहली बीवी में से मेरे अब्बा थे, जबकि मेरे दादा की दूसरी बीवी में से अब्बा का एक सौतेला भाई था। मेरे सौतेले चचा अक्सर अब्बा से कारोबार की भाग दौड़ खुद संभालने का कहते। चचा की आदतें ऐयाश मर्दों के जैसी थी। चचा का उठना बैठना भी कुछ अच्छे लोगों में नहीं था। चचा के सब दोस्त ऐयाश और जवारी थे। चचा को भी जुए की लत लग चुकी थी। यही वजह थी कि अब्बा चचा पर एतबार नहीं करते थे। इसी वजह से कारोबार से अब्बा ने चचा को हमेशा ही दूर रखा था, मगर चचा इस बात को अच्छा नहीं समझते थे। चचा हमेशा अब्बा से लड़ते झगड़ते और कहते कि अपनों से ज़्यादा आप गैरों पर यकीन रखते हैं, इसीलिए तो कारोबार की सारी भाग दौड़ आपने अपने करीबी दोस्त को दे रखी है, जबकि मैं आपका अपना खून हूँ। आपको मुझ पर ज़रा बराबर भी भरोसा नहीं। चचा से हमदर्दी का इजहार अब्बा करते तो थे, और साथ ही ये बात भी वाज़े तौर पर बयान कर देते थे कि तुम खुद को ठीक कर लो, मुझे तुमसे बढ़कर कोई भी नहीं है। लेकिन मैं ये कभी नहीं कर सकता कि मैं अपने कारोबार की भाग दौड़ तुम्हारे हाथ में दे दूं और तुम सबको जुए में हार बैठो। मैंने ये सब कुछ बहुत मेहनत से कमाया है, इसमें मेरे या तुम्हारे अब्बा का 1 रुपया भी नहीं लगा। ये सब मेरी मेहनत और खून पसीने की कमाई है। मैं कैसे इसे उन हाथों में सौंप दूं जिन हाथों को शराब जुए जैसे गलत कामों की आदत पड़ी हुई है। चचा को अब्बा की बातें तो बहुत बुरी लगती थी, लेकिन नाराज़ होते हुए भी चचा कभी घर छोड़कर नहीं जाते थे, क्योंकि चचा ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि अगर मैं इस घर को छोड़ दूंगा तो मेरे पास तो कोई और ठिकाना भी नहीं होगा। वो दोस्त जो पैसे की लालच में चचा को अपने पास बिठा लिया करते थे, वही दोस्त चचा से नफरत करने लगते अगर चचा अब्बा का घर छोड़कर चले जाते। यही सोचते हुए चचा हमेशा लड़ झगड़ कर वापस घर आ जाया करते थे। अम्मा को चचा से बहुत खौफ आता था। अम्मा शादी के 1 साल बाद उम्मीद से थी और घर में बिल्कुल अकेली होती, तो चचा अक्सर घर में ही मौजूद होते। अम्मा खौफजदा रहती, जिसकी वजह से अम्मा की तबीयत अक्सर ख़राब रहती। अम्मा अब्बा से कहती कि आप तो कारोबार के सिलसिले में अंदर बाहर आते जाते रहते हैं, लेकिन आपका सौतेला भाई मेरे सर पर सवार रहता है। मुझे उसकी निगाहें कुछ ठीक नहीं लगती और नई आदतें अच्छी हैं। मुझे इसके सहारे छोड़कर मत जाया करें। इसे भी किसी काम धंधे पर लगा दें ताकि इसका घर से निकलना मुमकिन हो।
सारा दिन घर में पड़ा रहता है। पहले तो वो घर में गलत काम नहीं करता था, अब तो वो घर में भी वो सब गलत काम करता है जो इसे होश में भी नहीं रहने देते। अम्मा हमेशा अब्बा से अपने खौफ का इजहार करती और कहती कि किसी तरह अपने भाई को भी काम में लगा दें ताकि मैं खुलकर अपने घर में सांस ले सकूं। अम्मा की हालत भी ऐसी थी कि अब्बा अम्मा को इनकार नहीं कर सकते थे। तभी सोचते समझते अब्बा ने चचा से कहा कि तुम मेरे साथ सुबह ऑफिस जाया करो ताकि तुम्हें भी कारोबार की समझ आ सके। चचा अब्बा के फैसले से बेहद खुश थे क्योंकि चचा को तो सिर्फ पैसे की हवस थी। चचा ये सोचकर अब्बा के साथ ऑफिस जाने लगे कि हिसाब किताब का काम अब्बा उन्हें देंगे और वो जब जी चाहे जितना चाहे अब्बा की हलाल की कमाई को अपने हराम के कामों में लुटा सकेंगे। मगर अब्बा ने भी सब सोचते समझते चचा को ऑफिस आने की दावत दी। अब्बा ने सिर्फ अम्मा की वजह से चचा को ऑफिस बुलाया था। ऑफिस का छोटा मोटा काम अब्बा ने चचा के ज़िम्मे लगा दिया और ये बात चचा को कतई बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी क्योंकि चचा तो बहुत से सुहाने ख्वाब सोचकर अब्बा के ऑफिस में गए थे। चचा की तो सारी लूटने की प्लानिंग तब धरी की धरी रह गई जब अब्बा ने हिसाब किताब का काम चचा की बजाय अपने करीबी दोस्त के ज़िम्मे लगा दिया। चचा से ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो पा रही थी। चचा अंदर ही अंदर कुड़ते सड़ते रहते, लेकिन अब्बा से किसी किस्म की कोई बात ना करते, ना ही किसी किस्म का कोई गिला करते नजर आते। एक दिन अचानक अम्मा की तबीयत ख़राब होने पर अब्बा अम्मा को हॉस्पिटल ले गए और अम्मा ने एक बच्ची को पैदा किया। जब मैंने अपनी माँ की गोद में आँख खोली तो मैं इस बात से अनजान थी कि जिस घर में मैं पैदा हुई हूँ उस घर के लोगों में एक भेड़िया भी इंसानी लिबास पहने रहता है। मेरे पैदा होने की खुशी मेरे अब्बा को इस कदर थी कि मेरे अब्बा ने ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी ले रखी थी। सारा हिसाब किताब और ऑफिस का काम अब्बा ने अपने करीबी दोस्त के ज़िम्मे लगा दिया था। अब्बा इस बात से अनजान थे कि जब वक्त बुरा होता है तो कोई दोस्त सजन कोई रिश्ता काम नहीं आता। मेरी पैदाइश की खुशी में अब्बा ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी जिसमें सब दूर पास के रिश्तेदार दोस्त अहबाब और जानने वाले शरीक थे। अब्बा ने सबके साथ मेरी खुशी मनाई थी। सब मुझे देखकर बेइंतहा खुश थे। वक्त गुजरता गया और मैं अपने बाप की मोहब्बत के साथ परवान चढ़ती गई। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे चचा मेरे पास लाड़ियाँ उठाने की भरपूर कोशिश करते, मगर अम्मा मुझे हमेशा मेरे सौतेले चचा से दूर ही रखती थी। न जाने अम्मा के दिलो दिमाग में क्या खौफ बैठ गया था जो मुझे मेरे चचा के करीब तक नहीं जाने देती थी। अब्बा अक्सर अम्मा से कहते कि वो इसका चचा है, उसको इस पर प्यार आता है, कभी कभार अगर वो तुमसे मांग लेता है तो उसे इनकार मत किया करो। लेकिन अम्मा अब्बा को ये कहकर चुप करवा देती कि आपसे आपके भाई की आदतें या हरकतें छुपी हुई नहीं हैं। मुझे समझ नहीं आती कि आप अपनी बेटी को लेकर इस कदर लापरवाह कैसे हो सकते हैं। मैं बहुत छोटी थी इसलिए मुझे अम्मा और अब्बा की बहस की कभी समझ नहीं आती थी। जब मैंने स्कूल जाना शुरू किया तो मुझे लाने ले जाने का जिम्मा अब्बा ने चचा को सौंप दिया था। अम्मा इस बात की वजह से भी हमेशा फ़िक्र में रहती। जब मैं स्कूल से घर वापस आती तो अम्मा मुझसे तरह तरह के सवाल करती। मुझे उस वक्त अम्मा के किसी सवाल की समझ नहीं आती थी। कभी कभार तो मैं अम्मा को जवाब दे देती तो कभी कभार मैं चिढ़ जाती और कहती कि आप ये किस तरह के सवाल मुझसे करती हैं? कहाँ गई थी? चचा कब लेकर आए थे? चचा कहाँ लेकर गए थे? इस किस्म के कई सवाल मेरे लिए अम्मा ने घर में तैयार कर रखे होते थे। आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे समझ आने लगी तो मैं अम्मा से उनके सवालों के जवाब में एक सवाल करती थी कि आप हमेशा मुझसे रोज़ाना एक ही बात पूछती चली आती हैं, मैं आपको एक ही जवाब देती चली आ रही हूँ, फिर भी ना जाने आपको किस किस्म की परेशानी जो अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मैं अब 8वीं जमात में पढ़ती थी। पढ़ने का मुझे इस कदर शौक़ था कि मैंने कभी अपनी क्लास में कम नंबर हासिल नहीं किए थे। मैं हमेशा अपनी क्लास में अव्वल नंबर पर रहने वाली स्टूडेंट थी। मेरी कामयाबी पर हर बंदा ही खुश होता। वक्त गुजरता गया, मैं अपने माँ बाप के साथ बेहद खुश थी और खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन मैं इस बात से अनजान थी कि मेरे लिए आजमाइश की घड़ियाँ शुरू होने वाली हैं और किसी की बुरी नज़र हमारे घर की सारी खुशियाँ निगल जाएगी। घर वापस आते हुए अब्बा का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ और अब्बा ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गए। हमारे घर पर तो जैसे गमों का पहाड़ टूट पड़ा। अम्मा तो अपनी सुध-बुध खो बैठी थी। अम्मा से ये सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इतना बड़ा सदमा अम्मा के दिलो दिमाग पर बुरी तरह से असर कर चुका था। अब्बा की तदफीन के बाद से लेकर 2 साल तक अम्मा अपने होश हवास में नहीं आए थे
अब्बा ने जिस दोस्त के साथ कारोबार शुरू किया था उसका दिल बेईमान हो गया था। उस दोस्त ने अब्बा की मौत के बाद कभी पलट कर नहीं देखा। कभी भी हमारे घर में अब्बा के उस दोस्त ने खर्चा नहीं भेजा। अब्बा के हिस्से में आती जितनी कमाई होती वो हमें कभी नहीं मिले थे। मेरी भी उम्र अभी इतनी नहीं थी कि मैं किसी के साथ हिसाब किताब कर पाती। मोहल्लेदारों ने जब उससे पैसे ना देने की वजह जाननी चाहिए तो वो इस बात से मुकर गया कि कारोबार में मेरे अब्बा का भी कोई हिस्सा था। उसने साफ अल्फाज में मोहल्ले वालों को ये साबित कर दिया कि अब्बा का उस कारोबार में 1 रुपया भी नहीं लगा हुआ। झूठे डॉक्यूमेंट्स बनवाने के बाद अब्बा के उस दोस्त ने इंसानियत से मेरा भरोसा ही उठवा दिया। मुझे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की अशद ज़रूरत थी। मैं जब भी अब्बा के उस करीबी दोस्त के पास अपनी अम्मा के इलाज के लिए कुछ पैसे मांगने के लिए जाती तो उसने मुझे धक्के देते हुए ऑफिस से निकाल दिया और कहा कि तुम्हारा बाप तो यहाँ पर चौकीदारी करता था, उसकी तो इस कारोबार में फूटी कोड़ी भी नहीं है और तुम मुंह उठाकर अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे लेने चली आई। मेरे साथ चचा भी थे। चचा और अब्बा के दोस्त की खूब लड़ाई हुई। चचा भी अब्बा का हिस्सा हथियाना चाहते थे और वह आदमी भी बेईमान हो चुका था। दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहे तो आखिरकार जीत अब्बा के उस मक्कार दोस्त की हुई। उसके पास जाली सब कागजात मौजूद थे जिन पर अब्बा के दस्तखत तक नजर आ रहे थे। पुलिस का मामला बनने के बाद सारा कारोबार पुलिस ने अब्बा के उस दोस्त के हवाले कर दिया। यहाँ तक कि जिस घर में हम लोग रहते थे वो घर भी उसी आदमी के कब्जे में चला गया, क्योंकि उसके मुताबिक अब्बा ने उसे भारी रकम उधार पर ले रखे थे और घर उसके पास गिरवी रखवा दिया था। उस बेईमान आदमी की वजह से हम लोग घर से बेघर हो गए थे। चचा को अब्बा पर अलग ही गुस्सा था, क्योंकि चचा को अब्बा की कमाई में से 1 रुपया भी हिस्से में नहीं आया था। इसी वजह से चचा भी हम लोगों से बेजार होने लगे थे। मेरी नानी मरने से पहले अपना घर अपनी अकलौती बेटी यानी मेरी अम्मा के नाम कर गए थे। अम्मा की हालत कुछ संभली थी तो अम्मा ने मुझे नानी के घर में ले जाने का फैसला किया। अम्मा चचा के साथ नहीं रहना चाहती थी। अम्मा जब भी चचा को देखती तो आपे से बाहर हो जाती। चचा को अम्मा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब जब अम्मा की तबीयत संभलती तो अम्मा मुझे चचा से दूर रहने की ताकीद करती और कहती कि इस जवारी बेईमान इंसान के साथ ज़्यादा बातचीत मत किया करो और इसे अपने घर में भी दाखिल मत होने दिया करो। अब मैं कुछ समझदार सी हो गई थी। मैंने अम्मा को समझाया कि हमारा तो पहले ही कोई नहीं है, अगर हम चचा के साथ भी बिगाड़ लेंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। दुनिया तो लूटने लुटाने पर तुली होती है, हमारे पास किसी मर्द का होना बहुत ज़रूरी है। तभी मेरे कहने पर अम्मा ने चचा को घर में रहने की इजाज़त दे दी, लेकिन इजाज़त सिर्फ इस शर्त पर दी थी कि चचा कोई भी गलत काम घर पर नहीं करेंगे और चचा की शादी जल्द अज जल्द कर दी जाएगी ताकि घर में एक और औरत के आ जाने से चचा की नज़र और नीयत दोनों ही साफ सुथरी रहें। अम्मा ने चचा का रिश्ता पास के गांव में तय कर दिया था। सादगी के साथ निकाह करते हुए अम्मा अपनी देवरानी को अपने घर ले आई थी। अब अम्मा को चचा को अपने पास रखने में कोई एतराज़ नहीं था। बस अम्मा चचा से कहती थी अब कोई भी गलत हरकत घर पर मत करना, जो काम भी करना है, जो मामलात हैं वो घर से बाहर रखना। मेरी चची बहुत अच्छी थी, वो मुझसे बेहद प्यार करती और अम्मा की भी बेइंतहा खिदमत करती। न जाने वो अल्लाह की नेक बंदी अम्मा को कहाँ से मिल गई थी। अम्मा अक्सर उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती और कहती कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम जैसी नेक औरत को अपने बेकार देवर के साथ ब्याह दिया और तुम्हें भी अपने मुश्किल वक्त का हिस्सेदार बना दिया। मेरी चची हमेशा अम्मा से कहती थी कि आप परेशान मत हो, ये तो सब किस्मत का लिखा था, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, हम इंसान तो कुछ भी करने के काबिल नहीं हैं। फिर भी अम्मा को अपने फ़ैसले पर हमेशा मलाल रहा। मेरी अपनी चची के साथ अटैचमेंट बहुत अच्छे थे। शादी के पहले साल ही चची ने 2 जुड़वां बेटियों को पैदा किया। हमारे घर में देखते ही देखते रौनक बढ़ती चली गई थी। एक दिन अचानक काफ़ी दिन चढ़ गया था लेकिन अम्मा अब तक नहीं आई थी। तभी चची ने मुझसे कहा कि जाओ देखो भाभी अब तक क्यों नहीं उठी, हालांकि वो हम सबसे पहले उठ जाती हैं, लेकिन आज तो दोपहर के 12 बजने वाले और भाभी अभी तक उठकर अपने कमरे से ही बाहर नहीं आई। मुझे भी परेशानी होने लगी थी। अम्मा सच में ही सबसे पहले उठ जाया करती थी, मगर आज तो दोपहर चढ़ गई थी और अम्मा का कोई अता पता नहीं था। जैसे ही मैं अम्मा की खबरगिरी करने के लिए उनके कमरे में दाखिल हुई तो मैंने अम्मा को बिस्तर से नीचे गिरा पाया। मेरी चीखें निकल गई थी। चची दौड़ती हुई अम्मा के कमरे में चली आई। हैरान परेशान हो गई वो भी,
और मिलकर हमने अम्मा को बिस्तर पर सीधा किया। डॉक्टर को बुलाने पर पता चला कि अम्मा तो पिछले 6 घंटे से हमें छोड़कर जा चुकी हैं। मेरे ऊपर एक बार फिर से गमों का पहाड़ टूट पड़ा था। एक बार फिर से हमारे घर में कोहराम मच गया था। मैं अपनी माँ के बगैर एक पल भी नहीं रह सकती थी। मैं अपनी माँ के बगैर जीने का तसव्वुर भी करती तो मेरी रूह कांप जाती। अल्लाह ने फिर से मुझे एक आजमाइश में डाल दिया था। चची मेरे आंसू साफ करती और मुझे बेइंतहा मोहब्बत देते, मगर मुझे फिर भी अम्मा की याद हमेशा सताती। अम्मा की तदफीन के बाद एकदम से चचा ने अपने तेवर ही बदल लिए थे। चचा चची को बहुत मारते पीटते और जो कुछ हमारे साथ होता, हमारे पास होता, वो छीन कर ले जाते और जुए में हार देते। यहाँ तक कि घर का राशन तक चचा जुए में हार आते थे। चचा के जुए की लत इस कदर ज़्यादा हो गई थी कि अब मुझे और चची से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता था। नन्ही 2 बेटियां भी थी। सारा दिन फाकों में गुजर जाता। चची और मैं चचा से चोरी चोरी काम करती और जो पैसे मिलते उसका खाना पीना कर लेती। चचा को ये बात भी हजम नहीं होती थी। चचा तब भी हमें मार मार कर हमसे पैसे छीन लिया करते। चचा के जुल्म सितम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। हम लोग चचा की इन हरकतों की वजह से बेहद परेशान थे। एक दिन चची रो रही थी और मुझसे कहने लगी कि तुम्हारी माँ हमेशा मुझसे माफ़ी मांगा करती थी और मैं हमेशा सोचती थी कि ये मुझसे माफ़ी क्यों मांगती हैं। आज मुझे इस बात का बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो गया है कि आखिर भाभी हमेशा मुझसे माफ़ी क्यों मांगा करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि तुम्हारे चचा में कौन कौन सी बुरी आदत थी, इसलिए वो हर वक्त मुझसे माफ़ी मांगा करती थी। चची हमेशा अम्मा को याद करके रो पड़ती और कहती कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, अल्लाह ताला भी तुम्हारी आसानियाँ करे। वक्त ऐसे ही गुजरता गया और मैं जवान हो गई। मैं बेहद खूबसूरत थी। हर कोई मेरी खूबसूरती पर रश करता। मेरे चचा जो कि बचपन से ही मुझसे बहुत प्यार करते दिखाई देते, उनके तेवर भी मुझे देखते हुए अचानक से बदलने लगे थे। चची मुझे हमेशा चचा से दूर रहने का कहती थी। मुझे अपनी अम्मा की याद आती कि अम्मा अभी भी मुझे चचा के करीब नहीं जाने दिया करती थी। तभी मैंने चचा से दूरी इख्तियार करते हुए ख़ुद को बहुत समझाया कि अम्मा और चची ठीक ही कहती हैं। चचा की हर आदत ही बुराई के रास्ते से होकर गुजरती थी। कभी कभी तो चचा का रवैया मुझे बहुत ही बदला दिखाई देता, तो कभी कभी चचा जुल्म सितम के इंतहा कर दिया करते। चचा चची को पीटने के साथ अपनी दोनों बेटियों पर भी हाथ उठाते और कभी कभी मुझ पर भी अपने हाथ की सफाई कर लिया करते। चचा की मार खाने के बाद मुझे अपने अम्मा अब्बा की बेहद याद सताती और मैं फूट फूट कर रोने लगती। अल्लाह से दुआ करती कि मेरे ऊपर ऐसी आजमाइश न डाल जो मुझसे बर्दाश्त न हो। वक्त के साथ हम लोगों को समझ आ गई थी, लेकिन चचा अब तक नहीं समझे थे। जैसे जैसे चचा की उम्र होती जा रही थी, वैसे वैसे चचा के शौक और ज़्यादा ख़तरनाक होते जा रहे थे। अब तो चचा बड़े बड़े जुआरियों के साथ जुआ खेलते और जब जुआ हार जाते और घर का कोई सामान तक नहीं होता तो चचा बेचकर अपना कर्जा न उतारते। घर की एक एक चीज़ चचा ने बेच दी थी। अब सिर्फ हम औरतें ही घर में बाकी रह गई थी। चची ज़ारो कतार रो रही थी। चची की बेटियां भी जवान हो गई थी, लेकिन बहू अपने बाप की कापी थी। आदतन और शक्लन दोनों सूरतों में ही अपने अब्बा पर चली गई थी। दोनों बेटियों में से एक भी बेटी चची के साथ प्यार मोहब्बत से पेश नहीं आती। चची के साथ बेइंतहा बदतमीज़ी से पेश आती। चची ज़ारो कतार रोती और अपने दुख मेरे साथ बांट लेती। चची की दोनों बेटियों से ये बात बर्दाश्त नहीं होती थी कि चची मेरे साथ कोई बात कर लें या अपना दुख सुख ही बांट लें। वो चचा को शिकायत लगाकर हमेशा चची की बेइज्जती करवाती और फिर खूब मज़े लेती। घर के हालात बहुत बुरे चल रहे थे। खाने पीने को घर में कुछ नहीं होता। घर में फाकों की नौबत आ चुकी थी। अब तो हमें मोहल्ले वाले भी खाने को कुछ नहीं देते थे, क्योंकि सब जानते थे कि चचा एक बहुत बड़े जवारी हैं। कोई भी डरते मारते हमारे घर में कदम नहीं रखता था, क्योंकि चचा भी कभी अपने होश में नहीं दिखाई देते थे। हमेशा ही किसी न किसी ख़तरनाक नशे का शिकार होता है। चची मुझसे कहने लगी कि आज हमारा बाहर जाने का प्रोग्राम है, तुम भी काम जल्दी से करके वापस आ जाना। हम सब मिलकर बाहर किसी पार्क में सैर के लिए जाएंगे। मेरा काम पर आज पहला दिन था। मैं बहुत खुश थी। काफ़ी अरसे बाद ही हमारे घर में कुछ अच्छा प्रोग्राम बना था। जब से अम्मा की वफ़ात हुई थी मैं तो ठीक से खाना भी नहीं खा सकी थी, तो बाहर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था।
मैंने चची का मुंह चूमते हुए कहा कि ठीक है, मैं आज से काम पर जल्दी वापस आ जाऊंगी, आप लोग भी तैयार रहना। चची मुझे हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे चची मुझसे कुछ कहना चाह रही हूँ, लेकिन चची के दोनों बेटियां चची के इर्द गिर्द मंडलाती नजर आ रही थी, इसलिए चची खामोश सी हो गई। मुझे चची का चेहरा कुछ परेशान सा दिखाई दे रहा था, लेकिन अचानक से चची के चेहरे पर जब खुशी आती तो मैं यही समझती कि शायद चची चचा को लेकर परेशान है। जब मैंने परेशानी की वजह पूछी तो चची ने बताया कि मैं किसी भी वजह से परेशान नहीं हूँ, बस हैरान हूँ कि आज तुम्हारे चचा हम पर इतने मेहरबान कैसे हो गए। मैं हैरान चची का चेहरा देख रही थी। तब चची ने मुझे बताया कि आज पार्क में ले जाने का फैसला तुम्हारे चचा का है। पहले वो हमें पार्क में घुमाएंगे और फिर बाद में खाना खिलाने के साथ ढेर सारी शॉपिंग भी करवाएंगे। ये सारी बातें सुनकर मैं परेशान हो गई थी, क्योंकि मुझे कुछ सही और ठीक नहीं लग रहा था। मैंने चची से कहा कि चची देख ले, आपको चचा की आदत का तो पता ही है। 2 रोटी के नवाले खिलाने के बाद वो हमारी अच्छी मार कुटाई करते हैं और सारा खाया पिया निकाल लेते हैं। मेरी बात सुनते हुए चची खामोश हो गई। इससे पहले कि वो मुझे कुछ कहती, चची की दोनों बेटियां उनके पास आकर खड़ी हो गई। मुझे काम से देर हो रही थी। मैंने कहा कि आज मेरा पहला दिन है, मुझे कोठी में काम करने को मिल गया है, इसलिए आज मैं देर से नहीं जाना चाहती। चची ने मेरे सर पर प्यार देते हुए मुझे दुआएं देते घर से रुखसत किया। मैं अपने काम पर जा रही थी। चची का मासूम चेहरा मेरी आंखों से दूर ही नहीं हो रहा था। मैं उस घर में पहुंच गई जहां मुझे काम करना था। मैंने अपने कपड़ों का शॉपर खोला, अपने कपड़े तब्दील करने लगी ताकि मैं काम कर लूं और फिर मैं अपने यही कपड़े पहनकर पार्क में घूमने चली जाऊंगी। तभी मुझे शॉपर में से एक पर्ची दिखाई दी, जिस पर मैंने जैसे ही वो सफ़ेद कागज़ खोला तो उस पर लिखा हुआ था कि अगर काम करते देर हो गई तो तुम अपने चचा के साथ पार्क में चली जाना, क्योंकि हम लोग टाइम से निकल जाएंगे। मैंने पर्ची पढ़ी तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन तभी मेरे कानों में मेरी मालकिन की आवाज़ पड़ी। मैंने जल्दी से कपड़े और पर्ची शॉपर में रखते हुए अपना काम शुरू कर दिया। आज मुझे कुछ ज़्यादा काम नहीं मिला था, इसलिए जल्द ही फारिग हो गई थी। जैसे ही काम से फारिग हुई मैंने अपनी मालकिन से इजाज़त लेते हुए घर का रुख किया। मैंने जल्दी से कपड़े तब्दील किए और घर जाने लगी। जैसे ही घर पहुंची तो ताला लगा था। ताला देखकर हैरान परेशान हो गई कि इतने में दूर से चचा अपनी तरफ आते दिखाई दिए। चचा मुस्कुरा रहे थे और मुझसे कहने लगे कि तुम्हारी चची को मैं अभी पार्क छोड़ आया हूँ, अगर 5 मिनट पहले आ जाती तो मेरा दूसरा चक्कर न लगता। चचा के पास मोटर बाइक थी। मैं हैरान होते चचा के चेहरे की तरफ देखती और कभी मोटर बाइक की तरफ देखती। चचा ने मुझे बताया था कि ये मोटरसाइकिल मेरे एक दोस्त की है, तुम लोगों को पार्क पर छोड़ने के लिए उधार ली है। अभी तुम लोगों को पार्क पर छोड़कर ये बाइक वापस करूँगा। मैं हटकर देखने लगी और चचा से कहा कि चचा, पार्क का प्रोग्राम कैसे बन गया। चचा ने मुस्कुराते मेरे सर पर प्यार दिया और जल्दी से कहने लगे कि बाइक पर बैठ जाओ, रास्ते में सारी रुदात सुनाता हूँ। चचा मुझे बाइक पर बिठाकर अपने साथ ले गए। रास्ता था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं पूछ रही थी कि चचा पार्क कितनी दूर रह गया है, चची कहाँ पर है। चचा मुसलसल कहते रहे कि 2 मिनट और हम पहुँचने वाले, पर चचा के 2 मिनट ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर अचानक चचा मुझे एक बहुत बड़े बाज़ार में ले गए। वो बाज़ार बाकी बाज़ारों से अलग था। ऐसे लगता था कि वहाँ चीज़ों की नहीं औरतों की नुमाइश होती है। मैं अपने इर्द गिर्द अजीब व गरीब किस्म का लिबास पहने औरतों को देखकर घबरा गई। मैंने चचा से कहा कि ये आप कहाँ लेकर आए, मुझे जगह ठीक नहीं लग रही। चचा ने मुझे बाइक से उतारते हुए कहा कि पार्क ही ले आया हूँ, ये थोड़ी सी जगह क्रॉस करने के बाद आगे पार्क है। चचा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ ले जाने लगे। मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो चचा ने मजबूती से थाम लिया और कहा कि अब ये हाथ किसी बात से ही छूटेगा। मैं चचा के रंगो रूप देखकर डर गई। मैं बहुत अच्छे से समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है। चचा की नीयत में खोट था। चचा तभी इसी किस्म का रवैया अख्तियार किए थे। तभी चचा ने ज़ोरदार धक्का देते हुए भरे बाजार में फेंका। वहाँ इर्द गिर्द मर्दों का हुजूम था। तभी मैं एक जगह जाकर गिरी जहाँ लंबा चौड़ा बड़ी मूंछों वाला आदमी था। मैं उसके कदमों में गिरी। उसने मेरे बालों से खींचते हुए मुझे करीब खड़ा किया और चचा से कहने लगा, वाह रे यारा, क्या माल ला दी है। उसका इतना कहना था कि मेरी रूह कांप उठे। मैं चीखने लगी और चची को आवाज़ देने लगी। मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। चचा मुझे इस बात का जब इल्म हुआ कि जुए में हार गए
میں نے روتے ہوئے چچا کے چہرے پر نظر ڈالی تو ان کے چہرے پر سنسنی خیز مسکراہٹ دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا، پر میں نے ہمت نہیں آ رہی۔ میری نگاہیں چچی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ دل میں سوچنے لگی کہ چچی تو ایسی نہیں تھی، چچی بھی چچا کے اس گندے کھیل کا حصہ بنی۔ یہ سوچتے ہی مجھے ان سے نفرت ہونے لگی۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ چچی ایسی نہیں ہے، ضرور چچا نے ان کے ساتھ کوئی کھیل کھیلا ہوگا۔ میری آنکھوں کے سامنے چچی کا پریشان چہرہ بار بار آنے لگا۔ تبھی اس آدمی نے مجھے اپنی طرف کھینچتے ہوئے چچا سے کہا، تم آج سے میرے حساب کتاب میں فارغ ہو، مجھے میری رقم وصول ہو گئی ہے، تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں ہے اب۔ چچا مسکراتے اس آدمی کو کہنے لگے کہ میں نے تمہاری رقم سے زیادہ مہنگی چیز دی ہے، کوئی نور کا ہیرا پکڑا دیا ہے، اس لیے اس کا دام اتنا نہیں جتنا میں نے جوئے میں ہارا تھا۔ اس کا دام تو کوئی دل والا ہی لگا سکتا ہے۔ اس آدمی نے میرے چہرے سے نقاب ہٹایا اور دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تبھی چچا سے کہا کہ بات تو تمہاری سچ ہے، تم نے تو واقعی میرے دام سے کہیں زیادہ مہنگا کوہ نور کا ہیرا تھما دیا ہے۔ اس کے دام تو بنتے ہیں، بولو کیا قیمت چاہیے تمہیں اس ہیرے کی۔ اس کی بات سنتے ہوئے چچا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ تبھی چچا اپنی ہتھیلی ملتے ہوئے کہنے لگے کہ جو دام آپ کے نزدیک اس کے چہرے کے وہ دام ادا کرو تاکہ میں جانے والا بنوں۔ اس آدمی نے میرے سر سے نوٹوں کی گڈیاں وارتے چچا کے منہ پر ماری۔ چچا سے کہنے لگا، کس قدر گھٹیا انسان ہو جو اپنے بھائی کی بیٹی کو میرے ہاتھوں بیچ کر اس کا دگنا دام وصول کر کے جا رہے ہو۔ چچا مسکراتے ہوئے اس سے کہنے لگا، میرا تو کام ہی یہی ہے۔ پھر کیسا بھائی؟ میں اس کا بھائی نہیں ہوں، وہ میرا سوتیلا بھائی تھا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی بیٹی کس حال میں اور کدھر ہے، مجھے تو پیسوں سے مطلب تھا۔ یہ کہتے چچا مجھے اس مجمع میں چھوڑ کر جانے لگے۔ میں چیخنے چلانے لگی۔ تبھی اس آدمی نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے چیختے ہوئے اس سے کہا کہ ہاتھ مت لگانا، چھونا مت مجھے، خبردار اگر میرے قریب آئے تو۔ میرے گرد کھڑے ہر مرد سے التجا کرنے لگی، خوددارا مجھے اس بے حس انسان سے بچاؤ، یہ ظالم انسان میری عزت کو تار تار کر دے گا، خدا کے لیے اس کے ظلم سے بچاؤ۔ لیکن وہاں کھڑا ہر شخص اور ہر مرد انسانیت کے نام پر بہت گندا دھبا تھا۔ سب لوگ میری بے بسی کا تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن آگے بڑھ کر کوئی اتنی ہمت نہیں کر رہا تھا کہ اس ظالم سے مجھے بچا سکے۔ جیسے ہی وہ ظالم میرے قریب آیا اور کہنے لگا کہ یہاں کھڑے کسی انسان کی ہمت نہیں کہ تمہیں بچا سکے، پھر کیوں یہ آنسو بہا رہی ہو؟ ہار مان لو، میرے ساتھ چلو۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا کہ میں جس رب کو مانتی ہوں اس رب کے آگے کسی کی ہار نہیں مانتی، میں صرف اپنے خدا سے ڈرتی ہوں، مجھے کسی سے ڈر نہیں۔ میری بات سنتے ہوئے وہ آدمی مسکرایا اور کہنے لگا، بڑا یقین ہے تمہیں اپنے رب پر، پھر کہو اپنے رب سے کہ آج تیری عزت کو میرے ہاتھوں سے محفوظ کرے۔ وہ مجھے دھمکی دے رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے چچا کی بہت منتیں کی، التجا کی کہ مجھے یہاں چھوڑ کر مت جاؤ، لیکن چچا نے مجھے دھکا دیتے ہوئے جو الفاظ بولے وہ سن کر میرا دل پھٹنے کو تھا۔ چچا مجھ سے کہنے لگے، بچپن سے لے کر اب تک میرے سر پر بوجھ بنی ہوئی ہو، تمہارے ماں باپ تو منو مٹی میں جا کر بیٹھ گئے، تمہیں میرے سر تھوپ گئے، تمہارے باپ نے ساری جائیداد غیروں کے ہاتھوں میں لٹا دی، مجھے ایک پھوٹی کوڑی تک نہیں دی، میں کیوں تمہاری مدد کروں؟ تمہارا باپ اور ماں تو میرے کسی کام نہیں آ سکے، تمہیں استعمال کر کے اپنی زندگی آسان کروں گا میں۔ یہ کہتے چچا مجھے ٹھوکر لگا کر چلے گئے۔ میں روتی چلاتی رہی لیکن مدد کے لیے کوئی نہیں آیا۔ تبھی میں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے پروردگار، تیری دنیا کے لوگ بہت ظالم ہیں، میں یتیم مسکین ہوں، میرے اوپر ظلم ہوتا دیکھتے سب خاموش ہیں، کوئی بھی تیری رضا کی خاطر اپنے قدم آگے نہیں بڑھا رہا، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اے پروردگار، مجھے اس ظالم شخص سے بچا۔ جیسے ہی اس آدمی نے دوپٹہ کھینچا تو تیز طوفان نے پورے علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ہر چیز دھول مٹی سے ڈھکنے لگی تھی، 1 فٹ پر کھڑا انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ طوفان اس قدر خطرناک تھا جو ہر چیز کو اڑائے لے جا رہا تھا۔ آسمانی طوفان کے ساتھ زمینی زلزلے نے بھی علاقے کو زد میں لے لیا۔ ہر چیز زور و شور سے ہلنے لگی۔ چند سیکنڈ کے لیے طوفان ایسے ہی رہا اور اس کے بعد سب تھم گیا۔ ایسے لگا جیسے زندگی سکون میں آ گئی ہو۔ تبھی میرے سامنے خوبصورت نوجوان کھڑا ہوا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس کو اپنے قریب پاتے مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے اندر کوئی مقناطیسی طاقت پیدا ہو گئی ہو۔ جیسے اس ظالم آدمی نے میری طرف ہاتھ بڑھایا اور میرے سامنے کھڑے نوجوان لڑکے نے اسے زوردار تمچا مارتے ہوئے کہا، جس عمر میں تمہیں بہن بیٹیوں کی عزت کرنی چاہیے، اس عمر میں تم بہن بیٹیوں کی بولی لگاتے پھر رہے ہو۔ وہ آدمی اکڑتا ہوا اس نوجوان کے قریب آیا اور اس کا گریبان پکڑتے ہوئے اس سے کہنے لگا، تو کون ہوتا ہے مجھ سے یہ سب کہنے والا؟
जिसे चाहूँ हाथ लगा सकता हूँ, जिसे चाहूँ हासिल कर सकता हूँ। मेरे और इसके बीच से हट जाओ। उसने उसका गिरेबान पकड़ा ही था कि उसे एक ज़ोरदार धचका लगा। वो दूर जा गिरा। वो आदमी उस लड़के को देखकर खौफजदा हो गया। ना जाने उसने उस लड़के से ऐसा क्या देखा था कि चीखें मारता हुआ वहाँ से भाग निकला। ना सिर्फ वो आदमी, बल्कि जो आदमी उस भरे बाजार में खड़ा था, उस लड़के को देख रहा था, वो आदमी भी वहाँ से चीखें मारता हुआ भागने लगा। मेरी तरफ लड़के की पुश्त थे। मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़े और मैं इस हकीकत को जान सकूं कि आखिरकार वो उसके चेहरे पर ऐसा क्या देख रहे हैं कि सब लोग उसके डर से भागते ही चले जा रहे हैं। कुछ देर मैंने कोशिश की कि मैं उस नौजवान लड़के का चेहरा देख सकूं, लेकिन मुझे उसका चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी लाख कोशिश करने के बावजूद भी जब मुझे उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया तो मैंने उसके सामने जाने की हिम्मत की। जैसे ही उसके सामने गई तो उसका चेहरा देखते हुए मैं खुद भी बेहोश होकर गिर गई थी। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को उस लड़के के घर में पाया था। मेरे सामने वो नौजवान लड़का बैठा मुस्कुरा रहा था। जैसे ही मैं होश में आई तो मैं खौफजदा होने लगी। मैंने हैरान होते हुए उसे सवालिया नज़रों से देखा। तभी उसने मुझे कहा कि मैं एक जिनज़ादा हूँ और तुम्हारी पुकार पर भेजा गया हूँ। तुम्हारे साथ जो जुल्म हो रहा था, उस जुल्म को रोकने के लिए मुझे आना पड़ा। इसलिए मुझसे खौफजदा होकर या डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं नेक जिनज़ादा हूँ। मेरा ताल्लुक़ नेक जिन्नात के कुंबे से है। तुम्हारी तरह और भी बहुत से मजबूर और बेबस लोगों की मैं मदद करता चला रहा हूँ। मुझे कई साल हो गए इस ड्यूटी पर फाइज हुए। इस वक्त मेरा गुज़र इस बाज़ार से हो रहा था जब मैंने तुम्हें रोते बिलखते और इल्तिजा करते देखा। मैं वहीं रुककर तुम्हें मुसलसल देख रहा और तुम्हारी बातें सुन रहा था। तुमसे ज़्यादा मुझे और कोई ज़रूरी काम नहीं लगा। उस वक्त मुझे तुम्हें बचाना सबसे ज़रूरी लग रहा था। यही वजह थी कि मैंने वहाँ पर खड़े हर मर्द की आंखें अपने असली रूप में आने के बाद खोल दी थी। जिनज़ादा जैसे जैसे मुझे अपनी बातें सुना रहा था, मैं वैसे वैसे खौफजदा होती जा रही थी। लेकिन कुछ देर का खौफ मुझ पर तारी रहा। उसके बाद मैं नॉर्मल सी हो गई थी, क्योंकि जो खौफ मैंने अपनी आँखों से और अपने ऊपर बर्दाश्त किया था, यह खौफ उस खौफ से ज़्यादा नहीं था। मैंने उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अगर तुम न होते तो शायद मैं आज खुद से नज़रें नहीं मिला पाती। मैं रोने लगी थी। उसने मेरे सर पर शफकत भरा हाथ रखते हुए कहा कि देखो, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे साथ ये मामला कैसे और कब पेश आया। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम उस वक्त मुसीबत में थी और मेरा फ़र्ज़ था कि तुम्हें इस मुसीबत से निकालूं। अब तुम बताओ, तुम्हें कहाँ जाना है? मैंने घबराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा कि मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी? तभी उसने मेरे करीब आकर मेरे सर पर प्यार देते हुए कहा कि फिर तुम मेरे पास मेरे ही घर में रुक सकती हो। मेरी भी बरसों से ख्वाहिश थी कि मेरी कोई बहन होती, लेकिन मेरी कोई बहन नहीं है और वैसे भी मैंने अपने वतन वापस नहीं जाना। मेरा काम इसी दुनिया में रहकर लोगों की मदद करना है। तुम और मैं मिलकर खिदमत खल्क करेंगे। अल्लाह ताला ने मुझे भाई से तो नहीं नवाजा था, लेकिन आज रज़ा की शक्ल में मुझे एक भाई अता कर दिया था। मैं अब रज़ा भाई के साथ रहने लगी थी। रज़ा भाई सारी रात गलियों में गश्त करते और गरीब और लाचार लोगों की खबरगिरी रखते और फिर उनकी मदद करते। ऐसे ही एक दिन रज़ा भाई घर आए तो उनके साथ एक बहुत खस्ता हाल कपड़े पहने एक औरत थी। औरत के कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। रज़ा भाई उसे घर के अंदर लेकर दाखिल हुए तो मैं उस औरत के चेहरे को देखने की कोशिश कर रही थी। औरत का चेहरा काले रंग की चादर से ढका हुआ था। तभी मैंने रज़ा भाई से पूछा कि ये औरत कौन है और इसे यहाँ किस लिए लाया गया है? रज़ा भाई ने मुझसे कहा कि ये बेसहारा और लाचार औरत है, आज गाड़ी के नीचे आते आते बची है। अगर मैं उस वक्त वहाँ पर मौजूद न होता तो ये औरत गाड़ी के नीचे आकर मर जाती, या तो फिर भूख और प्यास इसकी जान ले लेती। जल्दी से इस औरत का मुंह हाथ धुलवाओ और इसको खाने के लिए कुछ दो, मैं उसके कपड़ों का इंतज़ाम करता हूँ। मैंने उस औरत का हाथ थामते हुए उसे अपने साथ अंदर ले जाना चाहा। जैसे ही मैंने उसका हाथ थामा तो मुझे वो हाथ जाना पहचाना सा लगा। मुझे उस पर बहुत तरस आने लगा, इसीलिए मैंने उसके चेहरे से कपड़ा हटाते हुए जैसे ही उसका चेहरा देखा तो मेरे तो पाँव तले से ज़मीन खिसक गई। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी प्यारी चची थी।
मैं चची को देखकर चीखते हुए उनके गले लगकर रोने लगी। चची ने भी मुझे पहचान लिया था और मेरे साथ लगकर ज़ारों कतार रोने लगी और मुझसे कहने लगी, मेरी बच्ची, तू ठीक तो है? तभी मैंने चची से पूछा कि आपने तो चचा का साथ देकर मुझे ख़त्म करने का प्लान बना लिया था। चची ने रोते हुए मेरे आगे हाथ जोड़े और मुझसे कहा कि मुझे इस प्लान का हिस्सा मत बनाओ। ये प्लान तुम्हारे चचा और मेरी बेटियों का था। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। चची की हालत बता रही थी कि चची ने कभी भी चचा के गंदे इरादों में उनका साथ नहीं दिया था। इसलिए चची हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मैंने फ़ौरन से चची को माफ़ करते हुए कहा कि इसमें आपका क्या कसूर? वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने मुझे रज़ा से मिलवा दिया। मैंने चची को बताया कि रज़ा मेरा भाई बन गया है। चची भी हमारे साथ उसी घर में रहने लगी। मैंने अपने जालिम चचा और उसकी बेटियों को दुनिया में ही सज़ा भुगतते देखा था। रज़ा भाई ने भाई होने का फ़र्ज़ अदा किया, चची को सहारा दिया और मेरा एक अच्छा रिश्ता देखते हुए मुझे बाइज़्ज़त घर से रुखसत कर दिया। आज मैं अपने शोहर के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हूँ और हर नमाज में अपने भाई रज़ा के लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे रज़ा जैसे भाई से नवाजा।